Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dakshta and I manifest that together we all grow bigger, better and an inch closer to being high on Zindagi. By this video, I want to talk about this one post which I posted on Instagram story of mine where I asked that who should be paying the bill on a date. अब इसके ऊपर जो responses आए, you can clearly see कि most of you have voted for splitting it. Then second it's for boys and third is for girls. In the end, I will be telling you my POV, my point of view, that how I think it should be done, and my current POV, I would say, and my previous POV also, that how I wanted it to be. लेकिन उससे पहले let's just talk about it in general. The majority of you are voting for splitting. ठीक है? So let's just discuss in detail. Number one thing is there should be no stereotypical tagging and naming of who should be doing what. There's this very common thing whenever it comes to homemaking, ghar ka kaam, nurturing, all of these things are tagged under women's work, and all the earning and providing work is tagged under men's work since ages. Like उसको हम deny कर ही नहीं सकते, यही चल रहा है ना, यही बोला जाता है कि ये औरतों के काम है और ये आदमियों का काम है. तो this is what I think should piss off a lot of us, because अगर भगवान ने हमें ये स्ट्रेंथ दी है कि हम भी अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हुए पढ़ाई करके कमाने निकल सकते हैं, तो फिर बॉयज भी नर्चर कर सकते हैं. देयर इज अ नर्चरिंग क्वोशंट इन देम आल्सो. सो व्हाट डू आई थिंक इज कौन सा काम किसका है, ये टैग्स हटा देने चाहिए हमें. नेक्स्ट पॉइंट इज आप किसी डेट पे गए और आपको एक ऐसा लड़का मिला जो पे कर रहा है या जो स्प्लिट करवा रहा है. दो ऑप्शन है, ठीक है. तो आप सीधा ही इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते स्प्लिट करवा रहा है इसका मतलब ही इज लाइक इक्वल राइट्स, ही इज गिविंग मी वैल्यू एंड ऑल दैट. एंड अगर वो पे कर रहा है इसका मतलब ये है कि ही वांट टू डाउनग्रेड मी. ऐसा कुछ भी नहीं है. सी, सबसे पहली चीज, you need to find the why behind it, you need to find the reason behind it, because कुछ लड़के आपको पे करने नहीं देंगे out of chivalry, out of they being gentlemen, out of respect, out of they being generous and kind and be the one who's hosting it kind of thing. But some will be doing it just because to prove their point that I am the guy who's earning, I will be the one who will be providing, and you are the one who will be at the receiving end. ठीक है? This is not your work, I'll earn, I'll provide, you just go and do that household work. So ये भी माइंडसेट हो सकता है. तो एक बार में आप किसी कंक्लूजन पे जंप कर ही नहीं सकते. सेकेंडली, अगर कोई स्प्लिट करवा रहा है इसका मतलब हो सकता है कि वो आगे जाकर आपसे आपके हर घरेलू काम के अंदर जो भी आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उन सब के अंदर भी स्प्लिट करेगा. वो बोलेगा कि मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हो, इक्वल इक्वल दो, घर के खर्चों में हर चीज में इक्वल इक्वल दो. तो ऐसा भी इंसान हो सकता है, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है जो आपके ओपिनियंस को वैल्यू देना चाहता है, आपके जो अर्निंग्स है उसको वैल्यू देना चाहता है, तो वो आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो बोल रहा है कि आप भी पे कर दीजिए, मैं भी करता हूँ, ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो, आपको बुरा फील ना हो, टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू मेक यू फील दैट ही इज द वन हु इज setting the bar at equal levels. Okay, तो ऐसा भी हो सकता है. So you cannot jump on a conclusion on a single date, या फिर 2-3 बार में. आपको उसका इंटेंशन समझना पड़ेगा, मुझे तो यही लगता है, because in the end intention matters and the reason behind doing some things matters. चलो, so it's time for my POV. तो अगर मैं अपने प्रीवियस POV की बात करूं, हमेशा मुझे ये लगता था कि the one who is making me split is the best person, because he is making me confident, he is uplifting me by allowing me to pay for myself. Like, this will make me proud that I am earning and I can pay my expenses, I can afford my living, I can afford everything for myself. So मुझे uplift करने के लिए वो ऐसा कर रहा है, तो मैं ऐसा सोचती थी कि split करने वाला बेस्ट इंसान है जो मुझे split करने के लिए बोल रहा है, ठीक है. But now that I've been into a marriage, now that I've gone through a lot of things, I've gone through all the experiences, और मैं ये आप सबको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ प्लीज, कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अगर मैं मेरे पार्टनर के साथ में कहीं पे जा रही हूँ, एक इमेजिनरी सिचुएशन देख लो, और अगर वो पे कर रहा है, आई वुड फील बेस्ट. एंड आई थिंक एंड आई स्पीक फॉर लॉट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मेरे मतलब दिमाग में ये चीज चल रही थी कि स्प्लिटिंग द बिल इज द बेस्ट, बट मेरे दिल में ये चीज होती थी कि काश वो मेरे लिए पे करे, शायद वो मेरा बर्थडे पे अपने ऊपर जिम्मेदारी ले और वो बोले कि आई एम थ्रोइंग अप द पार्टी, आई एम डूइंग थिंग्स फॉर हर, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ जेनरोसिटी, आउट ऑफ शिवलरी ही इज डूइंग इट फॉर मी, और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग होगी, ठीक है. तो किसी भी लड़की को, आई थिंक, आप यहाँ कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपका क्या ओपिनियन है, बट मुझे लगता है हर लड़की को अंदर ही अंदर ये होता है कि काश द बॉय पेज एंड मेक मी फील स्पेशल. नाउ व्हाई आई चूज टू स्पीक लाइक दिस, वो भी मैं बाद में बताऊंगी. कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि क्यों आपका POV ऐसा, क्यों, आप तो बहुत बड़े फेमिनिस्ट हो, यू शुड बी वांटिंग, यू शुड बी रूटिंग फॉर इक्वल राइट्स एंड इक्वालिटी एंड एवरीथिंग.
सो दिस मेक्स मी रियली रियली सैड कि कोई भी लड़का जो शायद फेमिनिस्ट है या नहीं है या उसका मतलब भी नहीं समझता, लेकिन जब भी बिल पे करने की बात आती है, जब भी एक्सपेंसेस की बात आती है, दे आर लाइक हेलो, आप तो फेमिनिस्ट थी ना, लाइए पैसा रखिए यहाँ पे, लाइए। तो सारा फेमिनिज्म उनका स्प्लिटिंग करते टाइम या फिर पैसा खर्च करते टाइम जाग जाता है, और वो लड़की को भी याद दिलाते कि तू तो फेमिनिस्ट थी ना, क्या हो गया, पैसा नहीं देगी, अब मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही है। सो दिस इज दिस वे। तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ, फेमिनिस्ट होके भी क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ कि द बॉय शुड बी पेइंग इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई थिंक दैट सम थिंग्स नीड्स टू बी डन आउट ऑफ शिवलरी एंड आउट ऑफ बीइंग जेंटलमैन। क्योंकि अगर आप स्प्लिट करने के लिए बोल रहे हो फेमिनिज्म के नाम पे, तो चलिए घर चलते हैं, घर में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि जितना एक लड़की घर में रहती है उतना एक लड़का घर में नहीं रहता। जो वर्किंग आवर्स है उनको हटा दो, उसके अलावा भी the time which a girl is spending at home is far more than a boy who is spending at home. Boys are mostly out, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है कि घर में चल क्या रहा है। घर में सिर्फ झाड़ू पोछा और खाना और बच्चे, ये चार चीजें नहीं होती, इनफाइनाइट थिंग्स होती है जिनको आप स्प्लिट कभी कर ही नहीं पाओगे। शुरुआत करें साफ सफाई से। आपके घर में कॉकरोच नहीं होने चाहिए, आपके घर में चूहे नहीं होने चाहिए, आपके घर में टर्माइट्स नहीं होने चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आपके घर में सामान आ रहा है, आप उनको डब्बों में भर के इस तरीके से रख रहे हो कि उस पर कीड़े ना लगे, आपका किचन साफ हो, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। देन आप बोल देते हो कि ठीक है, कपड़े तो क्या है, वॉशिंग मशीन धोती है। जब वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डाल रहे हो, उस टाइम यू आर मेकिंग श्योर व्हाट शुड बी वॉश्ड इन अ वॉशिंग मशीन, व्हाट शुड बी हैंड वॉश्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कौन सा कलर किस कपड़ों पे लग सकता है, कौन से व्हाइट कपड़े उनको अलग धुलेंगे, कॉलर्स को अलग से रगड़ना, किसके अंदर कौन सा डिटर्जेंट डालना, लिक्विड या फिर वाला। देन उसके बाद में उसके धुलने के बाद में किस साइड से धूप लगानी, कहाँ सुखाना, उसके बाद में उसके सूखने के बाद में उसको तय लगा के वापस रखना और मेंटेन रखना कि कहीं घर के अंदर स्मेल ना हो, कहीं कुछ चीज ना हो, घर में जाले ना लगे, फ्रिज साफ हो, एक एक कोना साफ हो, सीलन ना आए, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स होती है घर के अंदर। ये तो चलो मैंने घर की बात की सिर्फ। उसके अलावा खाना पीना, लाइक आप अगर देख रहे हो कि आपके घर में फ्रूट्स आ, के अंदर उनको अच्छे से धोना, कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए एक नमक के पानी या नींबू के पानी में भिगा के रखना, इमली के पानी में भिगा के रखना, ठीक है। फिर अगर आप ड्राई फ्रूट्स भिगो रहे हो तो उसको भी 4 पानी से धोना। मतलब खाना बना रहे हो तो कौन सी चीज पहले डलेगी, कौन सी चीज बाद में डलेगी, कितना किसको पकना चाहिए, उसके बाद ही आनी चाहिए। नॉट जस्ट अ टास्क टू डू, इट्स एन आर्ट। A woman puts heart and soul in it। फिर बच्चों की परवरिश, बच्चों की परवरिश में तो पूछो ही मत कितनी चीजें होती है, बिकॉज जैसे बच्चा होता है उस औरत की जिंदगी ही बदल जाती है। नाउ शी इज नॉट अ वुमन एनी मोर, नाउ शी कांट थिंक हर लाइफ ऑफ अ सोलो पर्सन, शी हैज टू ऑलवेज थिंक अबाउट द किड फर्स्ट एंड देन हरसेल्फ लेटर। बॉडी चेंज हो जाती है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। किसी भी औरत को बैठ के पूछोगे ना बच्चा पैदा करना चाहती है, नहीं करना चाहेगी, ठीक है। शी इज डूइंग इट फॉर यू माय डियर। भगवान ने बायोलॉजिकली हमें एक्स्ट्रा काम दे दिया, क्या उसे स्प्लिट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, ठीक है। क्या एक बच्चा मैं पैदा कर लूँ, एक तुम कर लो, हो सकता है? नहीं। पीरियड्स, ओ माय गॉड, उस टाइम एक अलग लेवल का पीएमएस चल रहा होता है और उसके बाद में अलग लेवल के पेन्स और तकलीफें चल रही होती है। उसके अलावा वाइट डिस्चार्ज, फीमेल रिलेटेड इश्यूज, मतलब क्या मैं, यू नेम इट। उसके बाद में आफ्टर पोस्टमार्टम भी इतनी सारी साइकोलॉजिकल एंड बॉडीली चेंजेस आते हैं जिनके साथ में डील करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, बहुत बड़ा मॉम्स गिल्ट जाता है इसके अंदर। उसके बाद में मतलब रिलेटिव्स के आप बुरे बनोगे, ये खाने दे रही है, वो नहीं खाने दे रही, जबकि अ मदर नोज बेस्ट अबाउट द किड, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना। उसके बाद में उस बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है, तब उसका सब कुछ मेंटेन करना, सुबह उसको स्कूल भेजना, वापस वो आ रहा है तो उसका होमवर्क करवाना, उसकी टीचर के साथ में कांटेक्ट में रहना, उससे बातचीत करना, बच्चे को संस्कार सिखाना। बिकॉज इवेंचुअली अगर बच्चा कुछ भी चीज मैनरलेस कर रहा है, एवरीबडी वुड टर्न टू द वुमन दैट क्या सिखाया इसको, नो बडी वुड टर्न टू द मैन, बिकॉज क्या हो गया, ही हैज लेफ्ट द स्पर्म एंड लेफ्ट द हाउस ऑल्सो। तो आई थिंक जितना एक औरत घर में रहती है अपने काम के अलावा, उतना ही उस आदमी को भी घर में रहना होगा। तब उसे समझ में आएगा कि घर में क्या लेबर जा रहा है, कितनी चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसको एक औरत के पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को देखना पड़ेगा, तभी वो बिल स्प्लिट कर पाएगा फेमिनिज्म के नाम पे कि हेलो स्प्लिट द बिल, बोलेंगे हेलो स्प्लिट द वर्क। और प्लस अगर ये सारी चीजें आप स्प्लिट कर लोगे, ठीक है, घर का काम भी आदमी उतना का उतना घर पे रह रहा है और स्प्लिट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब जैसे एक औरत काम में झोंकती है खुद को, वैसे झोंक रहा है। फिर भी पीरियड्स and kids, like being a mother, pregnancy,
क्या इसको स्प्लिट कर पाओगे तुम कभी? तो बायोलॉजिकली ही भगवान ने हमें एक अलग पेडेस्टल पे बिठाया है, चाहे तुम मानो या चाहे ना मानो. सो वी डिजर्व अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, a particular kind of chivalry and gentleman behavior. You have to do that. This is what I think कि what a woman does in love उसको आप कभी split कर ही नहीं पाओगे. So that's why my point of view has changed from splitting the bill to the man should pay it. And what is your opinion over this? Let me know in the comments. Till then, मिलते हैं next video में. And don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye bye.